हेलो एवरीवन, फन एंड सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। एग्जाम्पल स्टार्ट किया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन. The sides of the triangular field are 41, 40 and 9. Find the number of rose beds that can be prepared in the field if each rose bed on an average need 900 centimeter square space. यहाँ पे यूनिट है मीटर और यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है. सबसे पहले साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड आर गिवन. सो लेट द साइड्स आर ए बी एंड सी. ट्रायंगुलर फील्ड, मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी साइड्स है 41, 40 एंड 9 मीटर. So these are the sides of the triangular field. Now we will find semi-perimeter, that is a plus b plus c by 2. So 41 plus 40 plus 9 by 2, 41 plus 950 plus 40 90 by 2 45. Now we will find the area of the triangular field by using Heron's formula. Area of triangular field apply करेंगे formula. Heron's formula is square root of s minus a S minus B, S minus C. S is your semi-perimeter, 45 here. And sides हमने लिए 41, then 40, and then 9. So, subtract करेंगे 45, 45 minus 41, minus this 15 minus 9, so 36. So, next step में factorize कर देते हैं. 45 3 5s are 15, 3s are 45. So 3 into 3 into 5, I can write it. 3 3s are 9, 5s are 45. Then factor was 4, then it was 5, then 36, I can write as 6 into 6. So ye pair complete, ye pair complete. So 3 into 5 into 2 into 6. 5 3s are 15, 2s are 30 into 6, 180 meter square. Unit was meter here, so 180 meter square. Clear? Now आगे हमें क्या फाइंड करना है. इसके बाद हमें कहा है कि अगर एक रोज बेड, अगर गुलाब का एक फील्ड में रोज का लगाना है तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए, तो कितने रोज बेड्स हम बना सकते हैं. तो कितने रोज बेड्स कैन बी प्रिपेयर. नंबर ऑफ रोज बेड्स, जितना एरिया है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन रोज बेड, यही होते हैं. अगर मुझे नंबर फाइंड करना है, सो टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, टोटल एरिया ऑफ फील्ड अपॉन एरिया ऑफ वन रोज बेड. Total area is 180 meter square. That was 900 centimeter square. 1 meter is equals to 100 centimeter. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो डिवाइड बाय 100. डिवाइड किया तो ये दोनों 100 गए ऊपर. सेंटीमीटर स्क्वायर था इसलिए 200 से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गई. 9 2s are 18, 20 into 100. So 2000 rose beds can be prepared with this area of the triangular field. Clear? It was easy. Triangular field की sides given है, उसका area find करो. तो उस एरिया में कितने रोज बेड्स लगा सकते हैं अगर एक रोज बेड का एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अगर मैं फिगर से देखूं तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल ए बी सी में इस डी बी सी का एरिया मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, सो साइड्स आर 120, then 122 and third side is 22 meter. So first find the semi-perimeter. A plus B plus C by 2. So 120 plus 122 plus 22 by 2. Add करते हैं. So 122, 120 and 22. 4, 6, 264 divided by 2. 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4. So this is semi-perimeter. So now we will find area of triangle ABC by using the Heron's formula. Square root of S, S minus A,
S minus B, S minus C. So S is 132. So put the value 132. Sides was 120, 122 and 22. एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही साइड्स थी, ताकि कैलकुलेशन करने के बाद मिस्टेक ना हो. लेट्स सी द साइड्स 120, 122 एंड 22. चलिए, तो 132 सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2, 3 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 2. तो 132 के फैक्टर 11 into 12 is 132. करके देख लो. 2 ones are 2, 2 ones are 2 plus 1, 3, 1 into 1 is 1. So 12 is here. So 110 is 10 into 11. 10 का पेयर है, 12 का पेयर है और 11 का पेयर है. So 10 into 12 into 11. 11 into 12 is 132. So 1320 meter square. Now अगर हम बात करें दूसरी ट्रायंगल की, जो कि छोटी ट्रायंगल थी DBC, इसकी साइड है 24, 26, DBC 24, 26 and 22. These are the sides. Let's check once again. 24, 26 and 22. चलिए इस केस में सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं. A plus B plus C by 2. 6 plus 4, 10 plus 2, 12. 2, 4, 6 and 1, 7. 2 3s are 6. So 36 is the semi perimeter here. Now again, by using Heron's formula, find the area of this triangle. Area of triangle DBC. Square root of S. S minus A. S minus B and S minus C. 24, 26 and 22. Yes, 24, 26, 22. Now subtract कर दें. 36, 6 minus 4, 2, 3 minus 2, 10, 6 minus 2, 3 minus 2. Okay. 36 second right is 6 into 6, 12 is 6 into 2, 10 is 2 into 5 and 14 is 2 into 7. चलिए चेक करते हैं क्या बचा. एक पेयर 6 का कंप्लीट, एक 2 का कंप्लीट. इस 6 को आई कैन राइट एज 2 into 3 क्योंकि ये 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है. तो 6 into 2 into 2 और स्क्वायर रूट के अंदर बचा 3 into 5 into 7. 2 2s are 4 into 6, 24. 15 7s are 105 का स्क्वायर रूट. आई थिंक हमने कल भी किसी क्वेश्चन में 105 का स्क्वायर रूट फाइंड किया था, मैंने सिखाया था. 1 into 1 05. 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 के पीछे 1 भी लगाऊंगी तो 5 से बड़ा होगा. एक पेयर और उतारा 0 हियर, अपनी तरफ से पेयर लिया था तो डेसिमल हियर. 10 का डबल 20. 2 पे जाएगा. 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 2s are 4. 10 minus 4 then 9. फिर नेक्स्ट पेयर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 0, 2 0 4. अब इसके पीछे देखेंगे कौन से डिजिट पे जाएगा. अगर 5 पे गया, 5 2s are 10 बड़ा हो जाएगा. सो 4 से चेक कर लेते हैं. 4 4s are 16 and 1 17. 4 2s are 8. सो इसके बाद भी एक डिजिट और चेक करेंगे. अगर वो 5 से बड़ा होता है सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10.25. ठीक है, तो आई थिंक 5 से बड़ा ही जाएगा. आप चेक कर लेना आगे. तो इट विल बी 10.25. ठीक है, सो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो. 10.25 को 24 से, चाहे आप इसका कैलकुलेशन इजी करने के लिए कट कर दो अपॉन में 100 करके. 5 से कट हो जाएगा. चलिए 5 से इसे कट कर देते हैं. क्या आता है? 5 2s are 5 2s are 10 0. 5 5s are 5 4s are 20. 5 1s are 4 6s are 24. So 41 into 6. 6 1s are 6, 6 4s are 24. नाउ मेरे पास दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ गया. बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे का माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. सो राइट डाउन जो हमें फाइंड करने के लिए कहा है. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन
is equals to area of triangle ABC minus area of triangle DBC. So what was the area of triangle ABC? It was 1320. This was the area. 1320 minus 246. 1320 minus 246. 10 minus 6, 4. 1 bacha. 11 minus 4. So answer will be 1074 centimeter square. This is the area of shaded portion. दोबारा से बता रही हूँ, बड़े ट्रायंगल में से फिगर में से हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है. बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे. बाय यूजिंग द हीरोन फॉर्मूला हम दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे एंड देन सिंपली सब्ट्रैक्ट. दैट वाज इजी. सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, अदरवाइज क्वेश्चन इज इजी. चलिए नेक्स्ट पे मूव करें. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नाउ. और मैं हर बार की तरह अब भी बता रही हूँ नई बुक के अकॉर्डिंग. दिस इज योर चैप्टर नंबर 10. ओके लेट्स स्टार्ट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड. एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उस पे ग्रास लगानी है जिसकी साइड्स गिवन है. तो अगर 7 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ग्रास लगती है तो मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है. सो 3 sides are given. So A is equals to 50 meter, B is equals to 65 meters, C is equals to 65 meters. So first find the semi-perimeter. A plus B plus C by 2. So 50 plus 65 plus 65 and 2. 65 plus 65, 130 plus 50. So 180, 90. So area of triangular field क्या होगा? By using Heron's formula, square root of S, S minus A, S minus B and S minus C. Your S is 90 here. So 90 minus 50, 90 minus 65 and third side was also 65. चलिए, so 90, 40, then next was 90 minus 65, right? 10 minus 5, 8 minus 6. So 25 into 25. ये तो एक पेयर सीधा कंप्लीट हो रहा है. 90 को I can write it as 9 into 10. 9 को लिख दिया 3 3s are 9. 40 को I can write 10 into 4. 4 को लिख दिया 2 into 2. And 25 का पेयर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है मेरा. एक 2 का कंप्लीट हो गया, एक 3 का, एक 10 का. 3, 10, 2, 25. 3 2s are 6 into 10. 25 को 6 से कर लो मल्टीप्लाई. 6 5s are 30. 3 is the carry over. 6 2s are 12 and 3 15. So 1500 meter square. अब मुझे दिया हुआ है कॉस्ट दी हुई है. कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास पर मीटर स्क्वायर इज ₹7. अगर 1 मीटर स्क्वायर पे ग्रास लगाते हैं तो 7 रुपए खर्च आता है. और हमारे पास एरिया आया 1500 मीटर स्क्वायर. तो उस पे ग्रास लगानी है तो कितना खर्चा आएगा? 0 0 7 5 are 35. 3 is the carry over. 7 plus 3 10. So ₹10,500 will be your answer. Will be the cost of laying grass in the given triangular field. ठीक है, सिंपल है. हीरोन्स फॉर्मूला सभी क्वेश्चंस में यूज होगा. चैप्टर उसी का है. तो सिंपल, पहले हमने ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड किया, देन फाइंड की कॉस्ट. अगर 1 मीटर स्क्वायर पे ग्रास लगाने का 7 रुपीज खर्च है तो 1500 मीटर स्क्वायर पे कितना आए. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए. The triangular side walls of the flyover has been used for the advertisement. The sides of the walls are given. The advertisement yielded an earning of ₹2000 meter square per meter square a year. एक ईयर में 2000 1 मीटर स्क्वायर पे एडवर्टीजमेंट लगानी है तो खर्च है. A company hired one of its wall for 6 months के लिए एक वॉल लिए. How much rent did it pay? चलो फाइंड करते हैं. पहले ट्रायंगुलर साइड है वॉल्स की, तो पहले उसका एरिया फाइंड करेंगे कि पूरा एरिया है कितना. सो A is equals to 13 मीटर, B is equals to 14 meter, C is equals to 15 meter. So first find the semi-perimeter. A plus B plus C by 2. 13 plus 14 plus 15 by 2.
5 plus 4 9 plus 3 12 42 by 2 21 meter. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, area of triangular side walls, that will be square root of s, s minus a, s minus b, s minus c. So semi perimeter is 21, 21 minus 13, 21 minus 14 and 21 minus 15. So what we get? Square root के अंदर 21 minus 3, 13 plus 8 is 21. Okay, 7 and 6. So 21 के factors लिख देते हैं. 3 into 7 is 21. Then what was the next? 8. 8 को लिख देते हैं 2 into 2 into 2. Then 7 was there. Then 6. 2 into 3. Pair complete करते हैं. 7 का complete, 2 का complete, ये एक और 2 का और ये 3 का. So 3, 7, 2, 2. 2 2s are 4, 3s are 12, 7s are 84 meter square. अब मेरे पास एरिया आ गया. अब मुझे कहा है कि एडवर्टीजमेंट लगाने का अर्निंग जो है 2000 पर मीटर स्क्वायर है ईयर. तो अर्निंग ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर अ ईयर पर मीटर स्क्वायर, अगर एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर पे लगानी है तो 2000 खर्च है, और अगर एक साल के लिए 84 मीटर स्क्वायर पे लगानी है तो 84 इंटू 2000 है. तो कितना आ गया? 000, 4 2s are 8, 8 2s are 16, ये आ गया. लेकिन जो कंपनी ने हायर किया है एडवर्टीजमेंट के लिए वॉल को, वो 6 मंथ्स के लिए किया है. सो कंपनी विल हैव टू पे फॉर 6 मंथ्स. अगर कोई भी कंपनी 1 ईयर के लिए लगाएगी तो इतना खर्च करेगी, लेकिन अगर उसने 6 मंथ्स के लिए लगाने तो खर्चा क्या हो जाएगा? हाफ. सो 168,000 by 2. 2 8s are 16, 2 4s are 8. So 84,000 कंपनी को रेंट देना पड़ेगा अगर एक वॉल पे उसने 6 मंथ्स के लिए अपनी एडवर्टीजमेंट लगानी है. क्लियर? पहले तो एरिया ही फाइंड किया है सिंपली डोन्स फॉर्मूला से. उसके बाद अगर एक साल के लिए लगाना है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए 2000 खर्च है. तो 6 मंथ के लगाने के लिए उसको कितना रेंट पे करना है? डेट इज 84,000. नेक्स्ट पे चलिए. फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स है ए ए ए. अभी मुझे नहीं पता दिए या नहीं, चेक करते हैं. परपेंडिकुलर was drawn on 3 साइड, तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए हैं. चलिए कर दिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ. ओके, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर गिवन. ओके, सो लेट दिस इज 14, 10 and this is 6 centimeter. Find the area of triangle. Let the sides of equilateral triangle are A and A. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड इक्वल होंगी. लेट दिस बी ए बी सी, और जो ये परपेंडिकुलर है इसे नाम दे देते हैं डी ई एफ. अब अगर मुझे इस पूरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ये सारे परपेंडिकुलर ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं. अब अगर मुझे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, मैं सारी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उनको ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओपी, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, सो डेट इज हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी आई कैन फाइंड. उसके बाद इन तीनों एरिया को ऐड कर दूं तो मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा. सो इसमें बेस क्या हो गया? बीसी एंड परपेंडिकुलर इज ए डी, सॉरी ओ एफ नहीं है यहाँ पे, दैट इज सी एफ. ओके, सो हाफ ए सी इंटू बीई. नाउ ए बी जो साइड्स है वो सब में ए है. सी एफ इज 14,
साइड इज ए डी इज 10, यहाँ पे साइड इज ए एंड परपेंडिकुलर इज 6। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 7s are 14, 2 5s are 10, 2 3s are 6, यूनिट वाज सेंटीमीटर, तो सारे एरिया आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर में, दिस ऑल्सो। तो अब मुझे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है, तो तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOC। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड किया, क्या मिला था हमें? 7A 5A 3A, 7A 5A एंड 3A। तो ये आ गया 15A सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला एरिया का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला भी एरिया फाइंड कर सकती हूँ। सिंस द साइड्स आर A and A, so semi perimeter will be sum of the three sides by 2. So area of triangle ABC by using Heron's formula, square root of S minus A, S minus B, S minus C, right? Okay. Now square root of 3A by 2, इनको solve करो. Taking LCM, 3 minus 2 is 1, so A by 2, A by 2, A by 2. एक तो A by 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, दूसरा क्या बचा अंदर? 3A square by 4. A square में से A बाहर आया और 4 में से 2, स्क्वायर रूट 3 रहा अंदर। सो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3A square by 4। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है और मेरे पास ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। तो लेट दिस एज साइड 1 एंड दिस एज साइड 2। तो इक्वेट 1 एंड 2 क्योंकि दोनों ही एक ही ट्रायंगल के एरिया है। सो 15A इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 4A square। एक ए से एक कैंसिल हो गया, 15 4s are 60 by root 3, that is the value of A। लेकिन मुझे फाइंड करने के लिए क्या कहा है? मुझे फाइंड करने के लिए कहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरे पास साइड की वैल्यू आ गई, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मैं इसको हीरोन्स फॉर्मूला से ना भी करती तब भी मुझे पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 4 इंटू साइड स्क्वायर। नाउ साइड दैट इज A, उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई है 60 इंटू 60, रूट 3 इंटू रूट 3। एक रूट 3 कैंसिल हो गया, 4 15 जार 15 6 जार 90, सो 900 बाय रूट 3 रैशनलाइज किया, सो 900 रूट 3 बाय 3, सो 300 रूट 3, दैट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में भी A की वैल्यू पुट करके एरिया को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि क्वेश्चन ज्यादा मार्क का नहीं है तो आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करने की बजाय डायरेक्टली बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 4 इंटू साइड स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर पर्टिकुलर हीरोन्स फॉर्मूला का, इसलिए हमने उससे फाइंड किया है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन मार्क्स कि कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंगली लेंथी क्वेश्चन होगा। चलो मूव करें नेक्स्ट पे। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 and we know what is the perimeter. Perimeter is sum of all sides, right? So that is given 32. The ratio of equal side to base, let the two equal sides are A and base. तो जो दो इक्वल साइड है उनकी रेशियो और बेस की रेशियो इज गिवन। सो लेट दिस इज 3x एंड b एज 2x। अब यहाँ पे b जो है वो आपका बेस है, सो आई विल राइट इट एज a plus b ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो 2a plus b, a is 3x, b is 2x, 3 2s are 6 plus 2 8x। तो यहाँ पे 8 4s are 32, x आ गया 4, तो मेरे पास साइड आ गई 3 इंटू 4 12 और बेस जो दूसरी साइड आ गई 2 इंटू 4 8।
ना मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और मुझे पता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला भी किया था a/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हिनोन्स फॉर्मूला का चैप्टर है, मुझे तीनों साइड्स मिल गई हैं, तो मुझे इसे उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। तो साइड्स आर a प्लस b प्लस c बाई 2, तो दो साइड्स तो इक्वल है, 12 प्लस 12 24 प्लस 8 32। पेरीमीटर भी गिवन था, तो डायरेक्टली आप p बाई 2 भी कर सकते थे सेमी पेरीमीटर के लिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अप्लाई हिडन्स फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सेमी पेरीमीटर आया हमारा 16 एंड साइड्स वर 12, 12 एंड 8, 16 minus 12 4 and 16 minus 8. So factorize किया, 16 के फैक्टर 4 into 4 और 8 के फैक्टर 2 into 2 into 2. Pair 4 4 2, 4 4s are 16, 2s are 32 root 2 and unit was centimeter square और meter square centimeter. ठीक है, हमें क्या गिवन था, पेरीमीटर गिवन था, रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स एंड बेस वाज गिवन। तो पेरीमीटर गिवन है, सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड्स, सेमी पेरीमीटर फाइंड किया एंड देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, find the area of the parallelogram given, also find the length of altitude from the vertex A on the side cell। अगर मैं देखूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वैसे तो होता है बेस इनटू हाइट, राइट, लेकिन मुझे यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। अब जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। पैरेललोग्राम की वी नो opposite sides are equal and parallel, so this side will be 12 and this side will be 17. We know opposite sides of parallelogram are equal and parallel, therefore AB is equals to DC is equals to 12 and AD is equals to BC is equals to 17 centimeter. Now parallelogram का area of parallelogram ABCD, तो ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, एक ट्राइंगल BDC और एक ABD, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स आर सेम, 17 12 25, 17 12 25, so that is equals to 2 times एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, किसी भी एक ट्राइंगल का, क्योंकि दोनों की साइड सेम है, तो मुझे अलग अलग से एरिया निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले ABD का निकालूं फिर BDC, क्योंकि साइड्स आर सेम, तो किसी भी एक ट्राइंगल का निकालूं, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो साइड्स आर 17 12 एंड 25, 17 12 and 25. So these are the sides of triangle BCD and unit is centimeter. Okay, so find the semi perimeter. So in triangle BCD हम उसका find कर रहे हैं. So A plus B plus C by 2, 17 plus 12 plus 25, 5 plus 2 7 plus 7 14, 2 3 4 and 1 5, 27. Now area of triangle BCD by using Heron's formula, square root of s minus a, s minus b, s minus c. Semi perimeter is 27, 27 minus 17, 27 minus 12, 27 minus 25. So 27 minus 17, 7 minus 2, 5 and 2. 27 के factor, 3 3s are 9, 3s are 27, 2 into 5 is 10, 15 is 5 into 3 into 2. Pair complete करते हैं, 5 3 and this is for 2 and this is for 3. तो क्या आया, 2 बार 3, 1 बार 2, 1 बार 5, 5 2s are 10, 9 into 10 90 centimeter square. This is the area of triangle.
So area of parallelogram ABCD is equals to 2 into area of triangle BCD, that is 180 centimeter square. And we know कि area of parallelogram का जो फॉर्मूला होता है that is base into height. area of parallelogram हमने फाइंड कर लिया. अब हमें कौन से बेस पे कहा था? अब वर्टेक्स ए से डीसी पे ड्रॉ हुआ, तो बेस इज डीसी एंड एई इज एल्टीट्यूड. डीसी इंटू एई. बेस इज डीसी एंड डीसी साइड वो क्या है हमारी? दैट इज 12 और एई एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है. तो एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई 180 बाय 12. 6 2s are 6 3s are 18, 2 15s are. सो एल्टीट्यूड हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर. जो पैरेललोग्राम है वो इस साल आपके टॉपिक में नहीं है कोर्स के, लेकिन मैं ये इसलिए करवा रही हूँ कि आगे आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम देना हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो अगर आप करना चाहते हो तो पैरेललोग्राम के क्वेश्चन करिएगा, अदरवाइज यू कैन स्किप दीज क्वेश्चंस जो कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड है. ओके, तो पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं, साइड्स आर इक्वल. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 into एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. तो वो फॉर्मूला लगा के हमने एल्टीट्यूड फाइंड कर लिया. क्लियर टू एवरीवन? मूविंग टू द नेक्स्ट वन. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की फॉर्म में एक फील्ड है whose sides are 60 and 40 meter and its diagonal is 80 meter long. Find the area of parallelogram. मैंने आपको पहले भी बताया कि पैरेललोग्राम का जो टॉपिक है इस साल आपकी बुक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करवा रही हूँ. एक तो इसमें ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा आपको समझ, अगर कोई क्वेश्चन में नहीं आया होगा. और नंबर 2, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला और कैसे क्वेश्चंस को करना है ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो, करना चाहो तो कर भी सकते हो. वी नो the sides of a parallelogram, opposite sides are parallel and equal. So let this parallelogram is A, B, C and D. चलिए, क्योंकि मुझे दूसरी साइड्स पता नहीं है तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा. कोई भी बिना रीजन के मैं मैथमेटिक्स में नहीं लिख सकती, पहले उसका कारण बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है. We know that opposite sides of parallelogram are equal and parallel. इक्वल और पैरेलल है तो क्या करेंगे? इक्वल हो गई, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू 40, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 60. नाउ मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. अब अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की, अब ये साइड मेरे पास 40 आ गई, ये 60. अगर मैं इस एक ट्रायंगल की साइड देखूं तो क्या है? 40 60 80. दूसरी ट्रायंगल की साइड देखूं ये वाली की, तो इसकी भी साइड क्या है? 40 60 और 80. मीन्स दोनों ट्रायंगल्स की साइड सेम है. अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. So I can write it as 2 into area of triangle BCD. 2 टाइम क्यों किया? क्योंकि दोनों ट्रायंगल की साइड सेम है. दोनों का मैं अलग अलग से निकालूंगी उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सेम आएगा, साइड सेम है. तो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इन ट्रायंगल BCD, अब ये हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. उसमें तीनों साइड चाहिए होती है. हमें गिवन है 40 60 एंड 80. एक बार चेक कर लेते हैं. 40 60 एंड 80 मीटर्स. यूनिट इज मीटर. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. ट्रायंगल में पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. सेमी मींस उसका हाफ. तो साइड्स इज 40 60 एंड 80. 180 by 2, that is 90 meter.
अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. So S is, that is semi-perimeter 90, 90 minus 40, 90 minus 60, 90 minus 80. So square root of 90, 50, 30 and 10. So find the value. 90 के फैक्टर्स लिखेंगे, 3 3s are 9, 10s are 90. उसके बाद अगली टर्म क्या आई थी 50 30. 50 के 5 into 10, 30 के 5 into 6, 6 को लिख दिया 2 into 3 एंड लास्ट वन वॉज 10, 10 को लिख दिया 2 into 5. चलिए पेयर्स कंप्लीट करते हैं, 3 का, 10 का, 5 का एंड 2 का. 3 10 5 2, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा 3 into 5. 5 2s are 10, 3s are 30 into 10, 300 root 15 मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. लेकिन मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, जो मैंने अभी फाइंड किया है. 2 into 300 root 15, 3 2s are 6, 600 root 15 मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. आपके कोर्स में अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन इन केस आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मेथड वे पता होना चाहिए, क्योंकि है तो रिलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही. अल्टीमेटली आपने फाइंड उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही करना है. ठीक है, और कुछ तो फाइंड नहीं करना था इस क्वेश्चन में. चेक कर लेते हैं, सिर्फ एरिया फाइंड करना था. सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 600 root 15 meter square. Moving to the next one. The perimeter of triangular field is given 420 and its sides are in the ratio. Triangular field है, उसकी sides हमने मान ली ABC, उसकी ratio में given है. So let A is 6x, B is 7x and C is 8x. Find the area of triangular field. We know perimeter is sum of all sides. So 6x plus 7x plus 8x. 6 plus 7, 13 plus 8, 21. So find the value of x. 21 2s are 42, so 20. तो यहाँ से मेरे पास साइड आ जाएंगी 6 into 20, 7 into 20 and 8 into 20. 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16. अब मुझे पेरीमीटर गिवन था, तो मुझे दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है. a plus b plus c, सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर, दैट वाज गिवन 420. तो यहाँ से s आ गया सीधा 210. यानी मैं दोबारा से टर्म लिखूं, ऐड करूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. स्क्वायर रूट ऑफ s, S minus A, S minus B, S minus C. S is square root of 210, A is 120, अगली साइड आई थी 140, then 160. These were the sides. चलिए सॉल्व करते हैं. 210, 11 minus 2, 90, 11 minus 4, 7, 11 minus 6. 210, 3 7s are 21. 10 को मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि 10 आगे मुझे 0 zeros दिख रही हैं. तो 90 का 10, 9 के 3 into 3, 70 का 10 into 7 और 50 का 5 into 10. 10 का एक पेयर, 3 का पेयर, ये 10 का दूसरा पेयर और 7 का पेयर. तो यहाँ लिख रही हूं मैं 10, 3 और 7 का पेयर. 3 into 5 15 बचा. 7 3s are 21. So 210 root 15. क्या फाइंड करना था? Let's check. Area of the triangular field. So area of the triangular field is 210 root 15 meter square. एक बार रीचेक कर दें. So 3 7s are 21. 10 9s are 90.
10 sevens are 5 tens are 10 के 2 पेयर कंप्लीट हो रहे हैं तो 10 एक और आएगा, 7 का एक पेयर और एक 3 का पेयर, सो 2100 आएगा यहाँ पे, 2100 रूट 15। मैं दोबारा से लिख देती हूँ इसे। ओके, so 2100 root 15 meter square, unit was meter, area find करें तो it will be in meter square। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए the sides of the quadrilateral ABCD, मान लो हमने quadrilateral बना दिया ये ABCD, ऐसा कुछ quadrilateral बन गया, sides है 6, 8, 12 and 14। ओके, एक साइड है 6, ये है 8, ये है 12 और ये है मान लो 14। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, ओके ऑर्डर में ली गई है तो इधर 12 आएगा, इधर 14 आएगा, ये ले ली मैंने 6, ये ले ली 8, ये है 12 और ये हो गई 14। चलो, नाउ द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इज राइट एंगल, ओके फाइंड इट्स एरिया। अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया तो ए बी सी, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल की बात करें, अब मैंने क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि उसने कहा है कि एंगल राइट एंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लग गया यहाँ पे, 1/2 इंटू 6 इंटू 8, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब क्वाड्रिलेटरल का फाइंड करना है तो इन दोनों को मुझे ऐड करना होगा। अब मेरे पास ये 24 तो आ गया, लेकिन ये तीसरी साइड तो मेरे पास नहीं है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन फाइंड इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, 6 square plus 8 square 36 plus 64 100, तो AC आ गया मेरे पास 10। सो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ओनली, ठीक है, ये लिखना है रीजन, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट एज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक वे और था, इस ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला पहले हम पाइथागोरस लगाते, थर्ड साइड फाइंड करते, हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर लो। अगर क्वेश्चन 4 मार्क का है मान लो, तो एबीसी का भी आप हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करो एरिया और दूसरे का भी, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया कि हाफ बेस इनटू हाइट, मुझे बेस भी पता है और हाइट भी पता है। यहाँ पे बेस आप पहले 8 लिख लो फिर 6 लिख लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि बेस 8 है आपका और ये 6 है, ठीक है। तो अब जो दूसरी ट्रायंगल बची ए सी डी, अब उसकी तीनों साइड्स पता है, नाउ यू विल यूज हीरोन्स फॉर्मूला एंड फाइंड द एरिया, फिर दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। चलिए, इन ट्रायंगल ए सी डी तीनों साइड्स गिवन है, पहली है 10, उसके बाद है 10, 12, 14, so semi perimeter, sum of all sides divided by 2, 10 plus 12 plus 14, 18. So area of triangle ACD by using Heron's formula apply करेंगे, square root of s minus a, s minus b, s minus c. What is your s? 18, 18 minus 10, 18 minus 12, 18 minus 14, 18 minus 10, 18 minus 12, फैक्टराइज करते हैं, 18 के फैक्टर, 2 9s are 18, next term was 8, next term was 6,
नेक्स्ट टर्म वाज 4, 2 का पेयर कंप्लीट, 2 का पेयर कंप्लीट, 2 का पेयर कंप्लीट, तो 3 बार 2 हो गया अभी। उसके बाद 3 का एक पेयर कंप्लीट, 2 इंटू 3 6 बचा हमारे पास स्क्वायर रूट में। 18 8 6 4, 4 का हो गया, 2 इंटू 2 6 का हो गया, 2 इंटू 3 8 का हो गया, और ये हो गया 3 3 जार 9 2 जार 18, एक 2 एक्स्ट्रा आ गया आई थिंक, 222 ठीक है। सो 2 2 जार 4, 2 जार 8, 3 जार 24 रूट 6, ये आया हमारे पास, सेंटीमीटर में था। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, इसका आया था 24 प्लस 24 रूट 6। यू कैन टेक 24 कॉमन और लीव एज इट इज, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चले नेक्स्ट पे। अब चाहो तो रूट 6 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और वो पुट कर सकते हो अगर डेसिमल में आंसर पूछा हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A rhombus shaped sheet with perimeter 40 and one of the diagonal is 12. Rhombus है जिसका पेरीमीटर है 40. We know rhombus की all sides are equal. All sides of rhombus are equal. तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 4 इंटू साइड हो गया, तो यहां से साइड ऑफ रोम्बस आ गई हमारे पास 10. One of the diagonal is 12 is painted on both sides at the rate of ₹5 per meter square. All sides are equal and diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Bisect each other at right angle. अब अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है, डायगनल बाइसेक्ट हो रहे हैं ओ पे, दिस इज 12, तो ये 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ, साइड हमने 10 फाइंड कर ली, तो मैं ये ओ बी साइड अगर फाइंड कर लू इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एओबी, राइट एंगल क्यों हुई? क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। नाउ हाइपोटेन्यूज मुझे पता है AO square plus OB square by Pythagoras theorem. AB is 10, AO is 6, OB यहां से फाइंड कर लेंगे। 100 minus 36, 10 square, 6 square minus किया 64, so OB is equals to 64, 8 का स्क्वायर होता है, रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में, टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू एज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मुझे एक ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, अब अगर मैं ट्रायंगल एओबी का एरिया फाइंड कर लूं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, रोम्बस के 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, चारों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा बिकॉज साइड्स आर सेम, तो मेरे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ जाए, मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी in triangle AOB. So sides are 6, 8 and 10. 8 अभी हमने फाइंड की, बाकी 6 और 10 थी। So semi perimeter A plus B plus C by 2, 6 plus 8 plus 10, 14 plus 10, 24 by 2, 12. Now find area of triangle AOB by using Heron's formula, square root of S minus A, S minus B, S minus C. S is 12, 12 minus 6, 8 and 10.
12 फैक्टराइज करो, 2 2s are 4, 3s are 12, 3 2s are 6, 2 2s are 4 into 2. पेयर कंप्लीट करो, 8 3s are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस. पहले 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी. बताया मैंने 4 टाइम्स क्यों आया. आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी सीओडी एंड डीओए. तो ये आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आया अभी हमारे पास एरिया. हमें आगे भी फाइंड करने के लिए कहा है क्या. अब हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ गया. अब हमें आगे क्या फाइंड करने के लिए कहा है कि अगर इसके दोनों साइड्स को पेंट किया गया है एट ₹5 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज ₹5 और हमारा एरिया आया 96 मीटर स्क्वायर. तो 96 इंटू 5 480. लेकिन हमें कहा है कि दोनों साइड्स को पेंट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई और होगा. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स बोथ साइड्स इज इक्वल्स टू 480 इंटू 2 ₹960. तो हमने पहले एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड किया, उसके बाद कॉस्ट फाइंड की एक तरफ पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग. फिर लेकिन हमें कहा है कि दोनों साइड को पेंट करना है, आगे भी पीछे भी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर. मूविंग टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS. अगर आपको फॉर्मूला याद हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्रीवियस क्लास में हमने किया था, that is equals to half sum of parallel sides into distance between the parallel sides. यही होता था. दिस वॉज द फॉर्मूला. अब मुझे कहा है ये साइड्स है तो PS और QR पैरेलल है, हमें फिगर देख के ही पता लग रहा है. तो इसके बीच में डिस्टेंस, मान लो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया RT. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. तो हाफ पैरेलल साइड्स क्या है RQ प्लस SP एंड डिस्टेंस इज RT. लेकिन मुझे RQ पता है, SP पता है, लेकिन TR नहीं पता. तो पहले मुझे उसे फाइंड करना पड़ेगा. सो राइट डाउन RQ इज इक्वल्स टू 7, SP इज इक्वल्स टू 12. नाउ ST वो कैसे आएगा, SP माइनस TP. SP मेरे पास पूरा है 12 एंड TP इज 7. क्यों, PQRT एक रेक्टेंगल है तो ये आ गया 5. यहाँ पे रीजन देंगे, PQRT is rectangle and we know opposite sides of rectangle are equal, so RQ is equals to PT is equals to 7 meter. अब मेरे पास आ गया ST. अगर मैं ट्रायंगल लू STR, क्योंकि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी लिख लेते हैं, ड्रॉ RT परपेंडिकुलर SP. So in triangle STR राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल लिख लो. बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर SR इज द हाइपोटेन्यूज, ST प्लस TR मुझे फाइंड करना है. SR इज 13 and ST is 5. SR is 13, ST is 5. हमने अभी फाइंड किया था. 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 144. So TR is square root of 144, that is 12. Again reason देंगे, take only positive value as length is always positive.
नाउ टी आर की वैल्यू मिल गई, सो पुट इट इन द इक्वेशन 1. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equals to half sum of parallel sides RQ 7 plus 12 और TR हमने फाइंड किया 12. So 1 into 2, 12 plus 7, 19. 2 6 are 114 meter square is the area of trapezium. तो इसको आप एक और वे से भी कर सकते थे. एरिया ऑफ ट्रायंगल STR फाइंड करो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRT, मतलब एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, उसके बाद एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा. या डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये लगाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में मेंशन नहीं होगा कि आपको हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है. जब आगे बाकी चैप्टर्स भी आ जाएंगे, मेंसुरेशन एक्सेट्रा, तो मेंशन नहीं होगा कि उसका फॉर्मूला है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय बच्चों.